Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. And did you know that the term gamer originally meant gambler and has been used since the 14th century in England and Australia? Well, now you know the reason for all the EA loot boxes that everyone just keeps shitting on EA for. Meanwhile, let's talk about PS5 aka जिसको हम अपने चैनल पर बोलते हैं Unobtainium. In the recent financial reports, Sony has reported that the sales of their PS5 console has exceeded 10 million units and the version of the console with an optical drive is no longer sold at a loss. For the record, PS4 को जो कि PS5 का जो पूर्वज वाला तुम्हारा console था उसको 10 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने में 2.5 से 3 साल लग गए थे. आई एम नॉट पूरी तरीके से श्योर, लेकिन 2.5 या 3 साल ही लगे थे. सोनी CFO हिरोकी टोटोकी confirmed that the company plans to sell 14 million units for the current fiscal year. मतलब by the end of this year, Sony ने first quarter 2021 में 2.3 million units of PS5 बेच दिए होंगे, and this in the middle of the pandemic. Plus, total sales figures of PS5 is 10.1 million since launch. यानी 10 million से ऊपर ये पहले से ही है. The CFO of Sony believes that if, and this is a huge if, that if the company is able to provide a sufficient number of chips and is able to fulfill its goal of 14.8 million PS5 in 2021, then by March 2022, the total number of sold consoles will reach up to 22.6 million units. साला 2.5 साल नहीं हुए हैं इस कंसोल को निकले हुए और ये पुराने PS4 के रिकॉर्ड को दुगने से तोड़ रहा है ऑलमोस्ट. You can just know कि जो होता है गेमिंग कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है at this point of time. And you know what? This unbelievable number, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल क्योंकि सोनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ट्वीट किया है दैट इट हैज सिक्योर्ड इनफ सेमीकंडक्टर चिप्स फ्रॉम AMD ताकि अपने कंसोल्स में डाल सके टू अचीव द डिजायर्ड सेल्स रिजल्ट फॉर द PlayStation 5 इन द करंट फिस्कल ईयर, जो कि मार्च 2022 में ओवर होगा. फिस्कल ईयर मार्च में शुरू होते हैं. सो दुनिया के लोड़े लगे पड़े हैं और हमारे सोनी जो होते हैं अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिखा रहे हैं और चुप करा रहे हैं. वेल, yep, definitely sounds like a Japanese company, especially Sony. And speaking of sound, AMD is getting serious about competing with Apple. They have finally, in a recent interview with AMD's CVP of Product Management, David McAfee, have sounded the trumpet of war with none other than Apple. Apple is a $1 trillion company, okay? AMD उसके आसपास भी नहीं आती है, by the way. ये इंटरव्यू The Indian Express ने लिया है and well, this interview has some interesting golden nuggets about the AMD strategy to compete toe to toe with Apple. First, when asked about what do you think from Mr. McAfee, what do you think about Apple's new M1 chip, तो उनका जवाब ये था, quote, "What Apple has done is that they have taken a different approach to design a chip. Their approach is something that has strong single-threaded CPU performance that is right there with the Zen 3 series processors. I would say that the biggest innovation that Apple has brought into the ecosystem is the battery life and power efficiency that comes from the heritage of the mobile handset space and kind of taking it into the PC space from a mobile handset design methodology." End quote. Now, Mr. McAfee ने जो यहाँ पर बोला, it makes total sense क्योंकि now ये थोड़ा सा generalization है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि if I remember correctly, the independent reviewers के जो tests है, ठीक है, Zen 3 के और M1 के, Zen 3 beats M1 in almost all tasks अगर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कंपेयर किए जाए तो, परफॉर्मेंस नंबर किए जाए तो M1 से हर जगह जीत रहा है Zen 3, ठीक है. बट अगर तुम एफिशिएंसी और हीट पर फोकस करने लगते हो तो M1 beats everything that is out there in the market, ठीक है. सो या उनका ये वाला जो स्टेटमेंट है, इट मेक्स टोटल सेंस कि जो होता है, हाँ भैया परफॉर्मेंस के मामले में तो हम पहले से ही जो होता है उनके पास जो चीज़ है वो हमारे पास भी है, बस एक जगह पर वो आगे हैं जहां पर उन्होंने इनोवेट किया है एंड दैट इज समथिंग दैट Mr. McAfee is giving Apple their due credit for. Second thing, when asked about what AMD's strategy is to compete with Apple and if this
new M1 chip demands a change in AMD strategy. तो उनका कहना था, quote, I don't think that what Apple has done changes AMD's strategy dramatically. When we look at our roadmap going forward, I think we got a very, very competitive roadmap against Apple. AMD is leading in performance, in power efficiency, and manufacturing process technology as well. We continue to do those things in spite of whatever moves that Intel or Apple might want to make. We will end up being in a very competitive position no matter what they do. End quote. इस इंटरव्यू से हम कुछ AMD के की स्ट्रैटेजी पॉइंट्स को समझ सकते हैं जिनको कि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं. फर्स्ट है AMD का Zen 4 रोड मैप. तुम एक बार देखो, ये रोड मैप positioned है with a major focus on competing with Apple instead of their old rival Intel. And to be very honest, it makes sense because Intel के अभी के रोड मैप भी तुम देखो तो तुम्हारे को रियलाइज होगा कि Intel 2025 में कम बैक करने की सोच रहा है. उससे पहले they really cannot compete with AMD. I am really sorry, ये सत्य है. ठीक है. AMD इस रोड मैप को दिखा के is basically admitting that they are not worried about Intel at all, but of Apple MX series desktop. उनको थोड़ी सी चिंता है एंड वो उसी से कंपीट करना चाहते हैं. दूसरी चीज ये है कि AMD is prioritizing next gen Zen designs with higher single core performance and most importantly more efficiency as well. So Zen 4 के साथ we have a lot to look forward to. Each and every Titan is just clashing with each other. So दुनिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है टेक की. So if you don't want to miss me reporting on it and if you don't want to miss the fun of it, do subscribe to the channel and press the bell icon so you don't miss that. And while we're talking about Zen 4, we have to discuss about TSMC. हम सबको पता है that the demand for TSMC's advanced manufacturing nodes is higher than ever before in history. और ये ongoing silicon shortage is going to continue for the next 2 years. सारे के सारे CEOs ने ये वाली चीज बोल दी है. Nvidia के CEO ने भी कुछ हद तक ये बोल दिया और Intel के CEO ने भी बोल दिया है. और AMD के CEO ने कमेंट नहीं किया है इस चीज पर, लेकिन at the end of the day हमारे को पता है कि ये 2 साल तक तो मिनिमम चलने वाला है. उसके ऊपर से Taiwanese giant has its hands full running its 5 nanometer production facilities at maximum capacities for various clients. It's basically printing money at this point of time. In fact, a new report also claims that its 3 nanometer orders have also been completely and utterly booked. 3 नैनोमीटर ढंग से अभी मैन्युफैक्चर भी होना शुरू नहीं है और वो अभी से पूरी तरीके से बुक्ड है. और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम IT होम्स, Apple is likely to be the biggest client for TSMC, securing their 5 nanometer, 4 nanometer and 3 nanometer orders for next generation chipsets. जिस इन केस तुम लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि एप्पल हर जनरेशन में एक मैन्युफैक्चरिंग नोड से आगे होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. तो अगर तुम्हारा 7 नैनोमीटर पर Zen 3 के चिप्स निकले थे, Ryzen 5000 तुम्हारे, तो तुम्हारा जो iPhone 12 था वो पहले से ही 5 नैनोमीटर पर निकला है, राइट. सो एप्पल एक जनरेशन आगे रहता है सारी की सारी इंडस्ट्री से अपने चिप मॉड्यूल्स के मामले में, जो कि वो TSMC से लेता है. विच इज वाई आई थिंक कि एप्पल ने पूरी की पूरी फैब स्पेस ऑलरेडी बुक कर रखी होगी जितनी भी उनको चाहिए, क्योंकि एप्पल के जब डिवाइसेस निकलते हैं तो वो एक फिनोमिनन होता है. एप्पल बहुत डिवाइसेस बेचता है, ठीक है. और अगर कुछ फैब थोड़ी सी बचती भी एप्पल के उससे, तो फिर भैया गूगल है, टेनोर है, कॉलकॉम है, ये सारे के सारे पीछे से लाइन में खड़े हुए हैं. तो फैब की कोई जगह नहीं है, पूरे तरीके से बुक्ड है. TSMC कुत्ते की तरह पैसे कमा रहे हैं वो, ठीक है. और कोई फायदा नहीं है, 2 साल तक तुम्हारी चिप शॉर्टेज बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी है. सो जितनी भी बाकी की इंडस्ट्री बचती है जिसके पास TSMC की फैब को बुक करने के ना ही पैसे, ना ही टाइम और ना ही रिसोर्सेज थे, उनको मोस्ट लाइकली सैमसंग के फैब से काम चलाना पड़ेगा. क्योंकि भैया एट द एंड ऑफ द डे एप्पल की R&D, चेकबुक और इकोनॉमीज ऑफ स्केल से तो भैया कोई भी compete नहीं कर सकता. इट्स जस्ट as simple as that. So yeah, you can expect the market to remain heated up in terms of chip shortage. And speaking of heat, ब्लू टीम की तरफ से जो होता है तुम्हारे को रिपोर्ट्स जो होती है ना ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख नहीं रही है. Intel has recently disclosed the power requirements for their 12th gen Intel Alderlake CPUs based on Intel 7 process nodes. Intel 7 का मतलब यहां पर ये हो गया कि Intel के 10 नैनोमीटर सुपर फिन टेक्नोलॉजी, यानी कि तुम्हारे 10 नैनोमीटर का जो प्रोसेस है उसको अब Intel 7 बुला रहे हैं वो.
ठीक है। तो उस पर बेस्ड तुम्हारे जो सीपीयूज बनेंगे वो इंटेल के 12th जेन सीपीयूज होने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड काफी अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, बिकॉज इट लुक्स लाइक द पावर रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज सीपीयूज इन दिस जनरेशन अगेन हैज गॉन अप बाय अ ह्यूज मार्जिन एज लीक्ड बाय HXL। इन सभी सीपीयूज के कॉन्टिन्यूस करंट रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं सेम है, पर हमारा जो फर्क पड़ता है, गेमर्स को जो फर्क पड़ता है वो है बूस्ट क्लॉक, यानी कि पीक करंट रिक्वायरमेंट, जो कि अभी से 20% से इंक्रीज कर चुकी हैं, और ये अभी सिर्फ इंजीनियरिंग सैंपल्स वगैरह पर बात चल रही है अभी। हारुकाज़े जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट जापानीज लीकर है, उन्होंने इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक छोटे से ट्वीट में जो होता है एम्फसाइज कर रखा है। उन्होंने 12th जेन सीपीयूज को इस ट्वीट में अपने 10th जनरेशन और 11th जनरेशन सीपीयू से कंपेयर कर रखा है, तो तुम स्क्रीन को पॉज कर सकते हो और इस ट्वीट को देख सकते हो। आई वोंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, बट इन शॉर्ट सारे ही सीपीयूज में जो 12th जनरेशन में आने वाले हैं उनमें 50 to 100 वॉट ज्यादा पावर कंज्यूम होगी कंपेयर टू 11th एंड 10th जनरेशन CPUs। नाउ बिफोर यू स्टार्ट ट्रिपिंग ऑन इंटेल, मैं तुम्हारे को ये वाली चीज एक और ऐड कर देना चाहता हूं भाइयों, अगली जनरेशन में सारे ही CPUs का पावर यूजेज बढ़ने वाला है, AMD का भी, ठीक है। AMD का पावर यूजेज अगले जनरेशन में तुम्हारे जो Zen 4 के CPUs आने वाले हैं उनका 180 to 190 वॉट्स पहुंचने वाला है अकॉर्डिंग टू करंट लीक्स, जो कि अभी के कंपैरिजन के जो CPUs आते हैं उनसे बहुत ज्यादा है। अभी जो मैक्सिमम पावर यूजेज होता है वो 95 वॉट्स है, उससे सीधे 180 वॉट्स पर पहुंचने वाला है, यानी दुगना। वैसे ही इंटेल का भी अभी का जो मैक्सिमम पावर आउट यूजेज है वो 125 वॉट्स तक जाता है, वो सीधे 228 वॉट्स तक पहुंचने वाला है। तो इंटेल अकेला नहीं है जिसका पावर यूजेज कुत्ते की तरह बढ़ने वाला है, AMD का भी बढ़ेगा अगली जनरेशन में। अगर तुमने पावर सप्लाई इसी जनरेशन में खरीदे हुए थे तो तैयार हो जाओ नए पावर सप्लाई खरीदने के लिए, क्योंकि तुम्हारे L लगने वाले हैं पावर सप्लाई के। कोई फायदा नहीं है, मिनिमम 1000 वॉट का तुम्हारा पावर सप्लाई गया है धर्म का। सो या नेक्स्ट जनरेशन में तुम्हारे को एक्सपेंसिव सीपीयूज मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग वाले सीपीयूज मिलने वाले हैं, तुम्हारे को एक बहुत ही अच्छी कूलिंग खरीदनी पड़ेगी उन सीपीयूज को मेंटेन रखने के लिए, तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं, तुम्हारी रैम्स DDR5 की होने वाली है जो कि अगेन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी, तुम्हारे को नए कैबिनेट्स खरीदने पड़ेंगे बिकॉज नए कूलर्स का डिजाइन कैसा होगा यू डोंट नो। ऑल इन ऑल तुम्हारा कटने वाला है नेक्स्ट जनरेशन में, अगर तुम पीसी को अपग्रेड करने की या बनाने की सोच रहे हो तो। हर एक चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, हर एक चीज तुम्हारे को ज्यादा लेनी पड़ेगी, और हर एक चीज नई होगी। सो गेमर्स, बी रेडी टू जस्ट गिव योर एस टू दीज मैन्युफैक्चरर्स। एंड स्पीकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, EVGA, अगर तुम्हारे को मेरी एक पुरानी वीडियो याद हो जिसके अंदर मैंने रिपोर्ट किया था कि EVGA के बहुत सारे 3090 Amazon की न्यू वर्ल्ड MMO को चलाते चलाते क्रैश कर जा रहे हैं, वाली रिपोर्ट अगर तुम्हारे को याद हो तो देयर इज एन अपडेट आफ्टर दैट। उसके बाद EVGA ने यह बोला था कि हम जितने भी 3090s क्रैश हुए हैं, जितने भी 3090s का बवाल हो गया है, उनको वापस कर लेंगे और उनको रिप्लेस करके जो होते हैं सारे के सारे गेमर्स को देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। बट there is a caveat here. EVGA has been charging high prices, double the prices for what the consumer paid for their 3090 to RMA those GPUs to themselves. RMA का मतलब अमेरिकन भाषा में मतलब तुम अगर जो होता है उन GPUs को EVGA के पास भेजते हो दोबारा से तो उसको RMA बोलते हैं। बेसिकली अगर तुम्हारे 3090 खराब हो गया है तो तुम्हारे को उस 3090 को भेजने से पहले, EVGA के पास भेजने से पहले तुम्हारे को एडवांस्ड में EVGA एक नया 3090 शिप कर देगी, इससे पहले कि तुम अपना 3090 जो खराब हो गया EVGA को भेज सको, ठीक है। विच इज अ ग्रेट थिंग दैट EVGA इज डूइंग। बाय द वे, ये वाली न्यूज एक तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा क्लिकबेटी लग सकती है, लेकिन दिस इज अ गुड मूव, नो कंप्लेंट टू EVGA। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि तुम्हारे डिवाइस खराब हो गया है ये देखने से पहले एडवांस में तुम्हारे को एक जो होता है डिवाइस भेजने को तैयार है। तो 3090 तुम्हारे को EVGA एडवांस में भेजेगी, इससे पहले तुम अपना 3090 वापस भी कर सको। लेकिन उस एडवांस GPU को भेजने से पहले तुम्हारे को जितने पैसे तुमने 3090 के लिए दिए थे उससे डबल पैसे देने पड़ेंगे। और जैसे ही तुम अपना पुराना 3090
EVGA को भेज देते हो और उनके पास वो 3090 पहुंच जाता है, EVGA तुम्हारे पूरे के पूरे जो डबल पैसे तुमने दिए थे वो वापस कर देगी। ये EVGA की तरफ से सिर्फ एक सिक्योरिटी मेजर है कि हाँ भैया कोई पुराना 3090 भी रख ले और नया 3090 भी रख ले और जो होता है हमारा पूरी तरीके से नुकसान हो जाए। EVGA ऐसा नहीं चाहता है, तो वो एक कोलैटरल की तरह इस पूरे के पूरे पैसे को अपने पास रख रहे हैं। सो नो कंप्लेंट्स टू EVGA अबाउट दिस, ठीक है। दिस इज अ गुड थिंग। तुम्हारे पास एक नया GPU पहले से ही होगा, इससे पहले कि तुम अपना पुराना GPU भेज सको। बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें कैवियाट ये है कि तुम्हारे को डबल पैसा फेसअप करना पड़ेगा एक अपने GPU को एक्सचेंज कराने के लिए, विच इन टूडेज इकोनॉमी जरूरी नहीं है हर किसी के पास हो। बट अगेन 3090 खरीदा है तुमने, डेफिनेटली ऐसे लोगों के पास पैसे होंगे, is what I'd like to think about this. So EVGA being the hero and the villain at the same time, just like I am right now, because I gave you the tech news for today. I became a hero, but at the end of the day, tech news is over and I have to leave you with just that. I am sorry, I don't intend to be villain, but यार करना पड़ता है, because there is only a limited supply of tech news every day. But if you don't want to miss that in the future, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक दबा सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो और कमेंट छोड़ के जा सकते हो ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी फॉरवर्ड हो, राइट? Do all of those things and I'll be back next time with another great video on this channel with more tech news that you can have with your morning coffee. So don't forget to do all those needful things because तुम्हारे को थेरेपी की जरूरत है। You are addicted to tech news, मेरी बात मान जाओ। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो अगर तुम्हारे को पीसी रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं तो, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है जो कि तुम्हारे नेक्स्ट पीसी बिल्ड में मदद कर देगी। तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर मीम्स, जो कि मैं हमेशा डालता रहता हूं। यू कैन एंजॉय इट देयर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर टेक न्यूज, जिसके बारे में मैं शायद वीडियो ना बनाऊं, और डील्स जो कि Amazon पर आती हैं जो कि तुम्हारे को शायद एकदम से ना दिखे, मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। यूर गोना लव इट देयर एज वेल। आसपास कोई जानवर हो तो प्लीज उनका थोड़ा सा ख्याल रख लेना यार। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस।